السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جو بچے اس وقت 5th C میں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ 4تھی جماعت تک کسی اور اسکول میں رہے ہوں گے، اور یہاں پر یہ پہلی بار اس اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، صحیح ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو میں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی ساری اسکولیں ہیں شہر میں، ان کو چھوڑ کر اس اسکول کو کیوں چنا ہے آپ نے؟ یہ جواب پہلے آپ دیجئے، اس کے بعد ہم آج کی گفتگو بڑھائیں گے۔ اس اسکول میں ایڈمیشن اس لیے لی ہے کیونکہ اس میں میں بھی پڑھ چکی ہوں پوری طرح سے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی اسکول ہے، لڑکیوں کی پوری ٹوٹل لڑکیوں کی اسکول ہے، اس لیے یہ بہت ہی بیٹر ہے، اور یہاں کے ٹیچرس الحمدللہ سب 1 سے 1 ہے، 1 سے بڑھ کے 1 ہے، اور یہاں کی تعلیم الحمدللہ بہت اچھی ہے، اس لیے اس میں ایڈمیشن ہے۔ اور ہے کہ میں اس میں پڑھی تھی، اس میں بہت مجھے تعلیم اچھی ہے، اسی لیے میں یہاں پر ایڈمیشن کرا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اسکول اچھی ہے، اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ڈالے۔ جیسے کہ یہاں پر صرف جھونڈے درجے اسکول ہیں، جس کی وجہ سے بچے 10ویں کے بعد 12ویں اس اسکول میں جا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو گریجویشن یا ہائر ایجوکیشن لینا ہے تو جے مومنٹ کالج، مطلب ان کو یہاں سے زیادہ کہیں بھٹکنا نہیں، اس لیے ہم نے اس کو سوچ لیا۔ بھائی نے جو بولے وہ صحیح بات ہے، اسی لیے یہ فیسلٹی ویسے میں نے یہی کہا۔ ہمارا بچے یہیں پڑھے تھے، وہ یہیں ہے، اور آگے بھی فیسلٹی یہیں زیادہ ہے، آگے گریجویشن بھی اور کوئی السلام علیکم۔ میرا بچہ شروع سے یہیں پڑھا ہے تو بس اس لیے یہیں سے کرا۔ اور کوئی کتنے بچے کی امید ہے، اور وہ بہت ہی اچھے ہیں یہاں پہ۔ تھوڑا اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اسکول میں؟ اسکول چل رہا کن کے لیے ہے، کن کے ذریعے ہے؟ والدین اور استاد۔ اسکول تو صرف عمارت ہے، اینٹ اور پتھر کی، جو ہر جگہ ہے۔ کتاب پورے مہاراشٹر میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کیسے جاتی ہے، بچوں کے لیے سہولتیں آج کے دور کے مطابق، ان کی صحت، ان کی سیفٹی، ان کا کریئر، یہ ساری چیزیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن جو بچہ ایک بہت پرانا قول ہے اور بہت سچا ہے کہ ماں کی گود اولین درسگاہ ہے، اور وہاں پر اس کے جو رول ماڈل ہوتے ہیں، جب وہ سمجھنے لگتا ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو 1-1.5 برس کی عمر سے، تو اس کے رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے دنیا میں سب سے اچھا کوئی ہے تو میرے امی اور میرے ابو، اور وہی تربیت کا بہت اہم زمانہ ہے۔ جو بچے وہ تربیت فراہم کراتے ہیں، اس کو کوئی اسکول پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسکول کے جتنے گھنٹے ہیں اس میں ہر گھنٹے میں کوئی پیریڈ ہے، ٹیچر کو اس کا نصاب پورا کرنا ہے، اس میں اس کو کاپی بھی چیک کرنی ہے، دوسری بھی کئی دیگر گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے کام کرنے ہیں، اور اس کے پاس ایک کلاس میں کم سے کم 60 بچے ہیں، کم سے کم، تو وہ ہر بچے پر انفرادی توجہ کتنی دے سکتا ہے؟ تو بیٹھنے کا طریقہ، صاف صفائی، ادب آداب، یہ تو گھر سے سیکھنے کی چیز ہے، اور جو بچے گھر سے سیکھ کر نہیں آتے، ان کو یہاں کنٹرول کرنے میں جو وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے، اس میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پڑھائی کا وقت ضائع ہوتا ہے۔
5वीं सी एक ऐसी क्लास है हमारे स्कूल की जिसको हम वक्त शोर उठता है, आधे से ज्यादा क्लास टीचर ना है तो खड़ी रहती है, क्लासरूम में एक तूफान बदतमीजी, एक दूसरे को ढकेलना, किसी की कापी फाड़ देना, तो ये क्या रुझान है बच्चों का? वो स्कूल क्या कर सकता है फिर? क्योंकि दरिया तो बह रहा है, अगर आपको प्यास नहीं तो पानी जबरदस्ती तो पिलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात ये आपने कहा कि बच्चे यहाँ पढ़े और यहाँ से इसी कैंपस में रहेंगे। इस ताल्लुक से भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस कैंपस के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है तालीम के मैदान की, तो आप ये जहन से निकाल दीजिए। हर बच्चा जो है अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, और अब दिन ब दिन जो दुनिया उनके सामने है वो तालीम की कोई आखिरी हद होगी उसकी। अब 10वीं जमात की अहमियत केजी की रह गई है। पहले कहीं होता था कि हाँ 10वीं का इम्तिहान है, अब 10वीं का इम्तिहान भी केजी का इम्तिहान समझिए आप, क्योंकि 11वीं के लिए अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और अब 12वीं के बाद किसी भी डिग्री कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बगैर दाखिले नहीं होते। और जो बात आपने कही कि इस साल हमारे शहर में 20,000 बच्चे 10वीं पास हुए हैं, तमाम स्कूलों के मिलाकर 20,000 बच्चे 10वीं पास हुए हैं, और जूनियर कॉलेज की सीट है 7,000। तो आप कैंपस को मत देखिए, इस कैंपस में कितने हजूम होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा एडमिशन को नहीं आएगा, ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन जब एडमिशन होते हैं तो जब 90% की लाइन लगी है तो कोई 60% वाला एडमिशन ले सकेगा। हमारे लड़के नहीं ले पाते, लड़के यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते 11-12 के, क्योंकि परसेंटेज पे लड़कियाँ हैं। तो ये जहन से निकाल दीजिए कि उनको 11वीं का एडमिशन यहीं मिल सकेगा। पहली बात ये आपके जहन में होना चाहिए कि पढ़ाई अहम है, और कोई भी इमारत जो है उससे कुछ नहीं हो। अगर आपकी तरबियत हो चुकी तो जगह अहमियत नहीं रखती। APJ कलाम की जिंदगी की किताबें पढ़ेंगे आप, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने अपनी लगन से मुकाम हासिल किया। आज भी BNN कॉलेज जो है भिवंडी का, यहाँ पर 11वीं का एडमिशन 900 रुपये में होता है, हमारे कैंपस में नहीं होता। और हमारे जितने टॉपर्स हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, सब BNN में एडमिशन लेते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, BNN की अगर आप लिस्ट देखेंगे ना एडमिशन की, तो उसमें आपको शायद 80 से नीचे कोई मिलेगा, और एक एक क्लास के एनरोलमेंट जो है, यानी 11वीं में 3,000 बच्चे हैं, 12वीं में 4,000 बच्चे हैं, ये एनरोलमेंट है। तो ये जहन से निकाल दीजिए आप कि इस कैंपस में आने का मतलब ये कि बस यहीं से सब कुछ पढ़ के निकल जाएंगे आप। सीट लिमिटेड है और उसमें फीस हेवी है, ये सारी चीज़ें सोचने वाली, ये प्लानिंग होनी चाहिए। आज हमारे स्कूल की जो फीस है आप मालूम कर लीजिए, उर्दू मीडियम में इससे कम फीस में कोई स्कूल नहीं चलता जो इतनी फैसिलिटी देता हो। 2 ग्राउंड है पीने के लिए, हमारे हर बच्चे को जो बोतल का खरीदते हैं आप पानी, वो है, फिल्टर्ड पानी पीते हैं बच्चे। इसके अलावा लैब है, लाइब्रेरी है, मैथ्स लैब है, 30 कंप्यूटर है, ये भी है, ABI लैब है, काउंसलिंग रूम है। इसके अलावा बच्चों की बढ़ती हुई उम्र की ज़रूरतों के हिसाब से सहूलत है। तो इतना बड़ा कैंपस इन बच्चों के लिए, और उसमें 55 लोगों का ट्रेंड अमला, ये इन बच्चों ही के लिए है ना सब कुछ, और इतनी कम फीस में। तो इसकी तो पहले प्लानिंग आप कीजिए कि वो बच्चा बनेगा क्या आगे, या आज उनसे बात कीजिए। हर बच्चा सलाहियतों का मालिक है, हर बच्चा वो कुछ कर सकता है, वो करना चाहता है, उसको उसी में आप एनकरेज कीजिए। अगर उसको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है वो आर्किटेक्ट बन सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं तुमको इस कैंपस से BSc करना है, तो ये उसकी सलाहियतों के साथ नाइंसाफी होगी, और इसीलिए हमारे लोग भी सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आज ही अपने बच्चों से बात कीजिए करियर के हवाले से।
लोग समझते हैं 5वीं अभी तो बहुत छोटी क्लास है, यहीं से शुरुआत होनी है और उनको बार बार एहसास दिलाइए कि आपको ये बनना है, ये करना है। एक बल्ला लगाइए जिसमें आप बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन के 5-10 रुपए जो आप डाल सकते हैं वो डालिए। जहेज की जरूरत नहीं है, ये तालीम आप उनको जो देंगे ना वही जहेज है। क्योंकि अभी एक बच्ची की माँ से मेरी बात हुई है किसी और मामले में, 7वीं क्लास की बच्ची थी, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कुछ पढ़ी हैं, तो बोले नहीं, और कुछ उनके मसाइल थे, तो मैंने फिर उनसे वही पूछा कि आपको नहीं लगता कि अगर आप पढ़ी होती तो आज एक आप बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी? तो उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ, मुझे पढ़ने का मौका मिला होता तो आज मैं अपने जो भी मेरे सामने मुश्किलें हैं उनका बेहतर तरीके से सामना कर सकती थी, और इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं अपनी बच्ची को ज़रूर पढ़ाऊँ। तो ये सोच होनी ही चाहिए। आगे आने वाला वक्त और चैलेंजिंग है, इसमें आपके पास इल्म और हुनर के अलावा ये हमेशा तजर्बा है कि मेरे आने के बहुत सारे आइडिया और ये चर्चा काम हम जो वक्त देते हैं बराए मेहरबानी अगर आप भी उस वक्त का ख्याल रखें तो हमारे आगे की जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब ना हो और आप एक वक्त रहते हुए इस मीटिंग से अपने घर में जा सकें। तो आज मेरे आपसे बात करने का इतना ही मकसद था कि आप अपने बच्चों को तवज्जो दीजिए। स्कूल में कैसे आते हैं, किसी के सामने जो है ना पहले आप दिखाई देते है ना, पहले कोई आपको देखता है तो आपके हुलिये से समझ में आना चाहिए कि एक आप शाइस्ता घराने के हैं। फिर जब आप गुफ्तगू करते हैं उससे समझ में आना चाहिए कि आप पढ़े लिखे, क्या आप डिग्री का बोर्ड हाथ में लेके घूमते है ऐसा कोई नहीं। तो ये चीजें जब तक बच्चों में नहीं आएंगी तो फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ वो कैसे आमादा होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ट्यूशन आप भेजते होंगे ना तो मत भेजिए। एक साल आप ये ट्राई करके देखिए